Very good afternoon, students. We are going to continue our unit here, that is crystal structure. The next topic which we are going to discuss today is the crystal planes, Miller indices, and interplanar distance or interplanar spacing. Now, as far as crystal planes are considered, if we study the crystal or the bulk three-dimensional crystal, we can imagine large number of different types of planes in the crystal. There will be single axis planes, there will be diagonal planes of different kinds, and there will be rectangular or triangular planes are there. So in different directions we can consider different planes. For example, if I consider this three coordinate system as like this, say x, y axis and z axis, so there might be different planes. This will be a plane which makes intercept along x and y axis, right? There will be a plane which can make intercept along x and z axis. There will be planes which can make intercepts on all three axes like this. So different types of large number of planes one can study in crystallography. Miller, a scientist who studied so many different types of crystal planes, and he had designed a system, or rather he has classified those large number of planes in different families. But we know that the equation of a plane can be written as x upon a plus y upon b plus z upon c is equals to 1, where this a, b and c are the primitives along x, y and z axis. Getting? In terms of intercepts, if we try to write in terms of intercepts, we can write px plus qb plus px plus qy plus rc will be equal to maybe another equation of a plane where p, q and r are the intercepts. It is the times or number of times to which this a, b and c are repeated, और इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ऐसे जितने भी प्लेन्स हो सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में, से एक प्लेन है जो सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट बनाती है, बाकी के उसके वाई और जेड इंटरसेप्ट जो रहते हैं वो इनफाइनाइट रहते हैं. तो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, और यू कैन राइट पी एक्स इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस यू कैन राइट. तो large number of such different planes were studied or discussed by Miller, and then he designed a system. He designed a system to index those planes, rather to index those different families of planes. The procedure to find Miller indices, Miller ने एक प्रोसीजर यहाँ पे डिज़ाइन किया. वो प्रोसीजर था कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर प्लेन के फैमिली का इंडेक्सिंग करेंगे. से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल प्लेन्स ऑफ सिमिलर काइंड. तो अकॉर्डिंग टू मिलर ऑल दिस प्लेन्स बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर फैमिली, एंड ये जितने भी ऐसे पैरेलल इक्विडिस्टेंस एक टाइप के एक जैसे दिखने वाले प्लेन्स रहेंगे, उन सब का मिलर इंडाइसेस, उसने उसको इंडेक्सिंग किया कि वो सब एक ही मिलर इंडाइस वाले होंगे, वो एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे. और जो मिलर इंडाइसेस रहते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है HKL, ऐसा ब्रैकेट में लिख के पैरेंथेसिस के अंदर में लिखते हैं आप उसको HKL. नाउ व्हाट दिस Miller indices are, according to Miller, he said that for any given plane you identify the intercept. पहला स्टेप बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई द इंटरसेप्ट फर्स्ट. सेकेंड के अंदर में प्लैंक बोलता है कि उनका आप रेसिप्रोकल लीजिए, टेक रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स.
राइट। वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है और एक रेशियो भी हो सकता है। उसके बाद में तीसरे स्टेप के अंदर में उसने बताया कि आप वो जो फ्रैक्शन मिलता है, जो भी रेशियो मिलता है, उसका एलसीएम लो, और चौथे स्टेप के अंदर में ये जो रेसिप्रोकल आया था उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाय एस एलसीएम। ये जो भी आपको नंबर मिलेगा उस नंबर को आप ऐसा ब्रैकेट में लिख दो, एच के एल हो जाएंगे, वो उस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ प्लेन का मिलर इंडाइसिस होगा। तो व्हाट ही हैड सेड, फर्स्ट आइडेंटिफाई द इंटरसेप्ट्स। आप क्या फाइंड करेंगे, आप पी क्यू आर पहले आइडेंटिफाई करो गिवन प्लेन का, बाद में पी क्यू आर का आप ले लो 1/p 1/q 1/r, आप उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लो, और रेसिप्रोकल के अंदर में बाद में आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम जो भी आएगा उससे इन रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद में दैट विल बी योर मिलर इंडाइसिस। So this is the procedure adopted by Miller to find Miller indices of any plane. वो जब आप उसके इंडेक्सिंग कर देंगे तो that will be the index for such particular equidistant parallel families of plane. Now let us consider एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि इंटरसेप्ट एक प्लेन है, एक प्लेन जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर में 2 और 1 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाता है। तो हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, पी क्यू आर, ये क्या हुआ 2 2 1। सेकेंड स्टेप बोलता है आप इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/2 एंड दिस इज 1, आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 1 1 2। सो दिस 1 1 2 विल नथिंग बट द मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन। ये जो प्लेन जो हमारे को 2 2 1 का 3 एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट बना रही थी, उसका जो फैमिली होगा उसका मिलर इंडाइसेस रहेगा 1 1 2। Let us consider another example to find Miller indices. मेरे पास में है 3 2 1, ये मेरे पास में है P Q R। अब आप ले लेंगे इसका रेसिप्रोकल 1/3 1/2 एंड 1, दिस इज द रेसिप्रोकल। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, वो होगा 6, ये आपको मिलेगा 2 3 and 6। So this 2 3 6 will be the Miller indices for this family। ये इस प्लेन्स की फैमिली का मिलर इंडाइस होगा 2 3 6। कैसे लिया हमने, आइडेंटिफाई किया पी क्यू आर, उसका रेसिप्रोकल लिया 1/3 1/2 एंड 1, इसका रेसिप्रोकल हो गया। बाद में रेसिप्रोकल का आपने एलसीएम लिया तो 3 × 2 दैट इज 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको 2 मिलेगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा, और 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो एच के एल विल बी द मिलर इंडाइसेस फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली ऑफ ए प्लेन। यू गेटिंग? नाउ इन आवर यूनिट How can we define the Miller indices in one sentence? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, define Miller indices, and it is found that large number of students are unable to write a proper definition. They are writing the procedure to find, but in one sentence, Miller indices can be defined as, listen very carefully, Miller indices can be defined as the reciprocals of the intercepts made by a plane on crystallographic axis when reduced to a smallest set of integer. So what is Miller indices? Miller indices किसी भी प्लेन के 3 एक्सिस पे बनने वाले इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है जब हम उसको सबसे स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं। सो मिलर इंडाइसेस आर डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय अ प्लेन ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू ए स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर। यू ट्राई टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर definition and try to write word by word. What's the point? So this is how one can find Miller indices for any crystal plane, provided you should identify, you should know its intercepts on the 3 axes. This is the procedure, and this is how there are 2 examples to find the Miller indices. Now in our examination a question arises, it is important, 2 मार्क 3 मार्क के लिए यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर में आप ड्रॉ करके बताइए कि आप प्लेन्स कैसे लोकेट करेंगे फॉर डिफरेंट इंटरसेप्ट्स।
तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है, ड्रॉ प्लेन्स, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, इन क्यूबिकल सिस्टम, इन क्यूबिकल सिस्टम फॉर प्लेन्स, ड्रॉ प्लेन्स इन क्यूबिकल सिस्टम, आपको क्यूबिकल सिस्टम के अंदर में प्लेन्स ड्रॉ करना है, क्यूबिकल सिस्टम हैविंग, आई एम करेक्टिंग द क्वेश्चन, हैविंग मिलर इंडाइसेस, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के प्लेन्स आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। नंबर 1, एक प्लेन है जिसका मिलर इंडाइसिस HKL इज इक्वल्स टू 1 0 0 है। इसका प्लेन क्यूबिकल सिस्टम में कैसा दिखेगा ये ड्रॉ करके आपको बताना है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आपको मिला HKL इज इक्वल्स टू 1 0 0, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको मिल जाएगा PQR, यू आर गेटिंग व्हाट आर मिलर इंडाइसेस, रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट। अगर से आप उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, ये एक ऐसा प्लेन है जो 1 यूनिट का इंटरसेप्ट x एक्सिस पे बनाएगा एंड पैरेलल टू y एंड z एक्सिस रहेगा। तो इसको क्यूबिकल यूनिट सेल में अगर से आपको लोकेट करना है तो यहाँ पर देखिए इसकी मेथड कैसी है, किस तरीके से आपको लोकेट करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्यूब निकालना है इक्वल डायमेंशंस का, 4x4 सेंटीमीटर के 2 सेंटर्ड स्क्वायर बनाएंगे, इस तरीके से इसको मिला देंगे। इसमें याद रखना है ये स्टैंडर्ड तरीका है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। Now you can see in our case the plane makes an intercept of 1 along only x axis, this is 1, whereas it is parallel to y and z axis। तो this plane, ये जो आपको दिख रहा है सामने से, this particular plane represents the 1 0 0 plane। ये वो प्लेन है, वो उस प्लेन का फैमिली है जिसके मिलर इंडाइसेस कैसे हैं, 1 0 0 है। तो दिस इज द प्लेन, दिस इज वन पर्टिकुलर केस। नाउ सेकेंड केस यहाँ पर जो मैं लेने वाला हूँ वो है एक दूसरा केस, दैट इज 2। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को रोटेट करेंगे। सेकेंड केस के अंदर में हम ले रहे हैं 0 1 0 विल बी HKL, देयरफॉर PQR विल बी इन्फिनिटी 1 एंड इन्फिनिटी। अब फिर से वही क्यूब में ड्रॉ कर रहा हूँ सेम डायमेंशन का, और उसके अंदर में लोकेट करूँगा 0 1 0 प्लेन कहाँ पर आएगा। पे अटेंशन, दिस इज माई एक्सिस, मैंने x एक्सिस निकाल दिया, y एक्सिस z एक्सिस यहाँ पे निकले हुए हैं, दिस इज y एक्सिस, ये x एक्सिस था, ये है z एक्सिस। अब आपको क्या बता रहा है, वो बता रहा है y एक्सिस के ऊपर में 1 का इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस का ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, यू कैन सी दिस प्लेन इज द मीनिंग और द पॉइंट। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द 2 प्लेन्स। ये 90 से रोटेट हो गया है ये वाला प्लेन आपका, यू कैन सी दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब अगर से किसी ने पूछा z एक्सिस तो ऊपर का प्लेन आएगा। तो माय थर्ड एग्जांपल विल बी ऑफ z एक्सिस। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस इज 1 और बाकी के 2 इंटरसेप्ट जो है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू x एंड z एक्सिस, वेयर एज इट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 1 यूनिट अलॉन्ग योर y एक्सिस। सो दिस इज योर सेकेंड फिगर। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक और ले रहा हूँ, इसको रोटेट करूँगा। माई नेक्स्ट होगी 0 0 1, ये हो गया मिलर इंडाइसेस HKL, देयरफॉर योर PQR विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड 1, इसका रेसिप्रोकल आप लेंगे। अब इसको आपको ड्रॉ करना है, तो सेम क्यूब आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर वंस अगेन, और उसमें मैं लोकेट करूंगा ये जो मेरा नया वाला प्लेन आया जिसके इंटरसेप्ट कैसे हैं, अलोंग z एक्सिस ही सिर्फ एक इंटरसेप्ट है, वेयर एज द प्लेन इज पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। तो ये मेरा आया z एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट 1, तो ये वाला जो मेरा प्लेन है, दिस प्लेन विल बी द प्लेन हैविंग मिलर इंडाइसेस 0 0 1, दिस प्लेन। तो दिस इज हाउ वन कैन लोकेट। So all these 3 are called as single family planes.
या सिंगल एक्सिस प्लेन। ये ऐसे प्लेन्स हैं जो किसी भी एट ए टाइम किसी भी एक एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट बनाते हैं एंड इट इज पैरेलल टू द रिमेनिंग टू एक्सिस। इन दिस केस इट हैज इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे जेड एक्सिस, और जो दूसरा एक्सिस यहाँ पे बचा जेड एंड वाई, उसको ये पैरेलल, यहाँ बचा एक्स एंड जेड, उसको ये पैरेलल, यहाँ बचा वाई एंड एक्स, उसको ये पैरेलल। सो दिस इज हियर। तो दिस इज 1 2 3 प्लेन्स। एग्जाम्स के अंदर में कोई भी पूछा जा सकता है। Let us consider this is one kind of planes which I have drawn. Now I am moving towards the second type. ये मेरा हो गया सिंगल एक्सिस प्लेन, ये नाम मैंने दिया हुआ है। अब मैं देखूँ वहाँ पे एक डायगोनल प्लेन जिसमें दो एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट बनेगा, तो मेरा सेकंड कैटेगरी का प्लेन यहाँ पे ले रहा हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं HKL इज इक्वल्स टू 1 1 0। Therefore PQR will be equal to 1 1 infinity। इस प्लेन को मुझे यहाँ पे आपको लोकेट करके बताना है। वंस अगेन आपको पहले क्यूब ड्रॉ करना है। कीप इन माइंड ये सारे प्लेन्स आपको क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर में ही दिखाने हैं, तो आप इस तरीके से पहले क्यूब ड्रॉ कर देंगे। सी वेरी प्रॉपरली, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज अगेन वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट जो प्लेन बना रही है वो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट का बना रही है, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट का बना रही है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लाइन पहले ज्वाइन करेंगे और फिर ये जो प्लेन जहाँ खत्म होगा उसके अपोजिट में एक पैरेलल लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये जो आपको प्लेन मिलेगा दिस इज एक्स वाई डायगोनल प्लेन। दिस इज द प्लेन विच हैज मिलर इंडाइसेस 1 1 0। सिमिलरली इसी फैमिली का एक दूसरा प्लेन भी हो सकता है। दिस इज 1 2 3, दिस वाज द फोर्थ। नाउ फिफ्थ एग्जांपल इन दिस केस इज एक दूसरा प्लेन हो सकता है, वो हो सकता है 0 1 1, एक प्लेन जिसके मिलर इंडाइसेस HKL इज इक्वल्स टू 0 1 1 है। देयरफॉर इन दिस केस PQR विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी 1 एंड 1। इसको अगर से आपको ड्रॉ करना है तो फिर से वही वाला क्यूब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब कहीं आप जाके इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने फिर से वही वाला क्यूब ड्रॉ किया, फिर से 3 एक्सिस आपको निकालने हैं। ऑलवेज ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। अभी आपसे क्या पूछा, ये 0 है, एक ये आया वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट आया और एक जेड एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट आया। आप इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और इसके ठीक अपोजिट वाले 2 लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो दिस इज द सेकेंड डायगोनल प्लेन विच बिलोंग्स टू द फैमिली 0 1 1। इट इज YZ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ इस कैटेगरी का जो तीसरा प्लेन आएगा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बी केयरफुल। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वो प्लेन आएगा 4 5, ये आपका हो गया, दिस वाज 4 5। नाउ 6 नंबर का जो प्लेन आएगा वो आएगा आपका, यस क्या आना चाहिए 1 0 1, दैट इज HKL आपके पास में आया 1 0 1। इसके PQR जब आप लिखेंगे तो PQR, इसको कॉमा देके लिखना है, PQR इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1 इन्फिनिटी 1। इसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे। उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पे क्यूब ड्रॉ करना है, तो क्यूब ड्रॉ करने का सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया। क्यूब ड्रॉ करने के बाद में आपको 3 एक्सिस निकालने हैं, एक एक्सिस मैंने निकाल दिया, बाकी के 2 आप यहाँ पे निकालेंगे। दिस इज टॉप वन इज जेड एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। यू आर गेटिंग दिस? नाउ इंटरसेप्ट कैसे बन रहे हैं? इंटरसेप्ट बन रहा है, एक बन रहा है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, एक बन रहा है जेड एक्सिस पे। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इसके ठीक अपोजिट के ऊपर में जो आएगा इसको पैरेलल लेके ये आपका जो रहेगा दिस विल बी योर प्लेन। तो ये जो प्लेन आपको बन रहा है ये प्लेन बनेगा आपका ZX प्लेन हैविंग मिलर इंडाइसेस 1 0 1। तो आउट ऑफ दिस 7 डिफरेंट मिलर इंडाइसेस हाउ वी कैन ड्रॉ मिलर इंडाइसेस, एग्जाम में कम से कम 2 आपको अक्सर पूछे जाते हैं। देयरफॉर इट इज सजेस्टेड टू यू दैट यू शुड प्रैक्टिस दीज पर्टिकुलर प्लेन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर मैंने हर जगह लिया था 1, यहाँ पे ही 1 था, यहाँ पे ही 1 था, 1 1 1। अगर से वहाँ पे 2 भी हो सकता है, वहाँ पे 3 भी हो सकता है। बिफोर दैट एक और जो स्पेशल टाइप का केस हो सकता है, केस नंबर 7, वो है कि एक है 1 1 1, एक प्लेन है जिसके मिलर इंडाइसेस HKL are 1 1 1 एंड देयरफॉर यहाँ पे आपको PQR जो मिलेगा वो भी 1 1 1 मिलेगा। अब इसको कैसे लोकेट करेंगे? ये एक ट्रायंगुलर प्लेन रहेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया। थोड़ा सा टेक केयर ऑफ दिस।
प्रॉपर क्यूब आप ड्रॉ करेंगे। मेरे डायमेंशंस में हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ अलग हो सकते हैं, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपके डायमेंशन एकदम परफेक्ट आना चाहिए। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। यहाँ पर एक इंटरसेप्ट, यहाँ पर एक इंटरसेप्ट और यहाँ पर इंटरसेप्ट। मैंने भी कहा कि एक ट्रायंगुलर प्लेन रहेगा तो आप इसको ज्वाइन कर देंगे, आप इसको ज्वाइन कर देंगे, आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो प्लेन बना, दिस इज अ प्लेन ऑफ फैमिली 1 1 1। देयर आर सो मेनी क्रिस्टल इन विच आप ऐसे बहुत सारे प्लेन्स वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे प्लेन्स वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एक हो सकता है 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बना है, उसकी फैमिली क्या रहेगी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 2 यूनिट बना सकता है। यहाँ पे केस हो सकता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर में जो है वो 1 यूनिट का बना इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस के ऊपर में हो सकता है हाफ का इंटरसेप्ट बनाए, तो ये जो रहेगा फिर ये शिफ्ट होगा। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लेंगे इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए, ये जो आपका आया सिंगल एक्सिस प्लेन, इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। मैं इसके नीचे यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए कि कैसे वहाँ चेंजेस हो रहे हैं। अब मेरे पास में एक प्लेन है जिसका मिरर इंडाइसेस है HKL, ये एडिशन मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर 8, राइट। HKL इज इक्वल्स टू 2 0 0। अब अगर से आप इसका PQR निकालेंगे, दैट इज इंटरसेप्ट, तो आपको मिलेगा 1/2 इंफिनिटी इंफिनिटी। नाउ क्वेश्चन इज इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस, इसको अगर से आपको ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। अब आपका जो इंटरसेप्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, ये फिगर आपके सामने में है, इसको देख कर ही आप ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मेरी कम है, सारी चीज़ एक साथ दिखानी है, इसलिए छोटा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा फोकस करके इसको देख लेना, यू विल फाइंड इट। नाउ यू कैन सी हियर द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट का, इसको आप हाफ कर देंगे। जब आप इस डिस्टेंस को जब आप हाफ कर देते हैं तो आपका जो प्लेन रहेगा वो प्लेन कैसा रहेगा, वो इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज योर प्लेन नाउ, योर प्लेन विल बी लाइक दिस। ये प्लेन, ये डिस्टेंस हाफ दिखेगा, दिस विल बी योर प्लेन एंड एट दैट टाइम यू हैव टू राइट, इस पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा इट इज 1/2। इसका इंटरसेप्ट जो था एक्सिस का हाफ लेंथ था। तो क्यूबिकल सिस्टम में सब ए रहते हैं, तो ये अपन इसको 1 अगर से लेते हैं तो उसका हाफ कर देंगे 1/2। नो यू कैन सी ये जो प्लेन था ये रिड्यूस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर इसको आप 2 करेंगे तो ये वाला जो प्लेन रहेगा इस साइड से आपको ये ऐसा बीच में चला जाएगा, ऐसा इसका जो दिख रहा है इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे तो ये जो दिख रहा है उसका ऐसा हाफ हो जाएगा, ऊपर का ब्लैक हो जाएगा, प्लेन यहाँ से आ जाएगा। यहाँ अगर से आप लेके जाएंगे, यहाँ पर अगर से आप इसको 2 करते हैं तो ये वाई का हाफ हो जाएगा, प्लेन आपका यहाँ पे ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। एक्स को 2 करते हैं, प्लेन आगे जाके ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन डू इट। तो इट इज़ एन होमवर्क फॉर यू पीपुल कि जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे 1 लिखा था, मैंने उसको 2 लिखा, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, आप प्लेन ड्रॉ करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, प्लेन आधा कट हो जाएगा। यहाँ पे इसको 1 रख के इसको 2 करेंगे तो ये जो आपका था ये 1 एज इट इज़ है, इसको 2 करेंगे तो आपका जो लाइन रहेगा ये यहाँ पे 1/2 लिख के आ जाएगा और आपका प्लेन जो रहेगा तो छोटा हो जाएगा लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, जहाँ से कम करेंगे उस साइड से आपको प्लेन को कम करना है। यहाँ पे अगर से आपको करना है से 1 1 2 तो ये हाफ हो जाएगा, तो प्लेन था छोटा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली इट इज़ होमवर्क फॉर यू पीपुल। गो टू योर होम, जब आप वीडियो देखने के बाद में आप उसको ट्राई करो, किसी बुक का हेल्प लो या मुझसे आप कंसल्ट करो, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को ड्रॉ करेंगे। आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन, ड्रॉ द प्लेन्स। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसको आप ट्राई करेंगे। ड्रॉ प्लेन्स इन क्यूबिकल सिस्टम हैविंग मिलर इंडाइसेस। आई एम राइटिंग हियर। एक तो मैंने ड्रॉ करके बताया, आप दूसरा ले लो 0 2 0, एक एग्जाम्पल ले लिया, फिर 0 0 2 दूसरी एग्जाम्पल ले लिया, फिर लिया मैंने 1 2 0 तीसरी एग्जाम्पल है, फिर ले रहा हूँ 2 1 0, ये दोनों आप ड्रॉ करेंगे, हो गया 1 2 3 4। फिफ्थ वन आई एम टेकिंग हियर 0 2 1 और इसको चेंज कर रहा हूँ 0 1 2 एंड थर्ड वन इज आई एम टेकिंग हियर 2 0 1, नेक्स्ट वन इज 1 0 2। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे प्लेन्स आप ड्रॉ करेंगे और लास्ट में एक आप ड्रॉ करेंगे 2 1 1, एक ये ड्रॉ करेंगे आप, बाद में एक ड्रॉ करेंगे 1 2 2। ये सारे जो मैंने आपको दिया है ऑल मिडल इंडाइसेस HKL। यू ट्राई टू ड्रॉ ऑल दिस 10 प्लेन्स एंड शो इट टू मी एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड। आप ड्रॉ करो और उसको मुझे व्हाट्सएप के ऊपर में सेंड करो, मैं उसको करेक्शन करूँगा और आपको बताऊँगा कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट।
Got the point? So this is an essential thing which is asked regularly in your previous examination and we hoping the same कि क्रिस्टलोग्राफी के अंदर में कम से कम 2 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द प्लेन्स इन क्यूबिकल सिस्टम हैविंग मिलर इंडाइसेस, कोई भी एक दी जा सकती है, 2 दी जा सकती है, एंड अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ मिलर इंडाइसेस द क्वेश्चन में बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. So this is the one part of this particular crystal planes and Miller indices. Now next part is the interplanar distance. So you should be very careful here. यहाँ पे एक छोटा सा हमको डेरिवेशन करना है. इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस और मिलर इंडाइसेस के बीच में कोई रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं क्या. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन क्यूबिकल और एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल. As I told you during the study of Miller indices that there are large number of parallel planes of same family. जब मैं बात करता हूँ सेम फैमिली की तो उस फैमिली ऑफ प्लेन्स सबका मिलर इंडाइसेस HKL होगा. यू गेटिंग? जैसे निकल एक क्रिस्टल है, हम जब ब्रैग्स इक्वेशन स्टडी करते हैं, जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन बीम से प्रूफ करेंगे यूनिट नंबर 1 या 2 के अंदर में, तो एट द टाइम आपको एक टर्म आएगी कि निकल इज अ क्रिस्टल हुज फैमिली 111 इज कंसिडर फॉर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन थ्रू निकल. ये हम वहाँ पे यूज करेंगे. इट इज फाउंड दैट 111 फैमिली के जितने भी प्लेन्स रहेंगे उनके बीच का इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, एंड दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटरप्लेनर डिस्टेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D. Since it is related with HKL, that is a family of planes, D is many times written as DHKL. It represents the constant perpendicular distance exists between the parallel planes of family HKL. What is interplanar distance? The perpendicular distance exists between parallel planes of a similar family having Miller indices HKL. यानी क्रिस्टल के अंदर में से मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे n नंबर्स ऑफ प्लेन्स. ये अगर से सेम फैमिली जिसका इंडेक्सिंग HKL है उसको बिलोंग करेंगे तो हर 2 प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा. हर 2 प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज D. दैट इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय DHKL. इफ आई राइट D111, मैं इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्रिस्टल मैंने ली है उसका कौन सा फैमिली लिया है, ऐसा फैमिली लिया जो तीनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेक्ट बनाता है, और उन फैमिलीज के प्लेन के बीच का जितने भी प्लेन आप लेंगे, आप n नंबर ऑफ प्लेन ले सकते हैं, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, निकल के लिए 111 फैमिली के लिए जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो है 0.91 एंगस्ट्रॉम. इट इज कांस्टेंट, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. So interplanar distance for a given family of planes is constant, which is the constant perpendicular distance exists. Got the point? So this much is sufficient, I think, to understand what is interplanar distance. Now, since it is related to HKL, so we are trying to find relation between, this is the derivation.